As now previous classes have been uploaded already, you can go to the designated place and find those classes. And it is pertinent to mention that from here on, as I told you in last class, now we will be shifting slightly faster towards from topic to topic. अगर आप में से किसी को अभी लग रहा है कि समझ नहीं आया है पिछला, very quickly take a recap and find the solution to your problems. We have learned to move the data from one register to another, right? Have we done that? हमने किया कि नहीं किया क्लास में? Moving data from one register to another, okay? And we also started the add instruction. Add instruction में हमने क्या किया था? Add 25 to add 34. We said that in order to do any arithmetic instruction, we have to always deal with accumulator. राइट जो भी हम कोई डेटा एडिशन करें ना वो एडिशन हमेशा एक्यूमुलेटर में ही होगी ठीक जस्ट काइंड ऑफ हाईलाइट दैट थिंग अगेन आप अगर कोई भी चीज सपोज फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग ऐड a comma hash 25 and suppose you have before this moved some data 35 in the accumulator. Now what you are trying to do is that you are trying to add that data. ठीक है? So ये वाला जो instruction है this is nothing but a equal to a plus this data which is hash 35. ठीक है? जब भी आप इस इंस्ट्रक्शन को देखेंगे एडिंग इसका मतलब ये है आप एक्यूमुलेटर जो रिजल्ट जो है आपका एक्यूमुलेटर में ही रहेगा ठीक जो प्रीवियस वैल्यू है उसके साथ ऐड हो जाएगा जो 35 है मैंने क्यों लिखा मेरा मकसद बोलने का ये है कि आपका जो रिजल्ट है हमेशा किस में रहेगा एक्यूमुलेटर में ठीक है सो बट हियर यूर A because of this thing is 25. So end में जो result आएगा वो आएगा 25 plus 35, which we did last time also. ठीक है? Okay. Now you can just write this one line. अगर आप मुझे आपकी नोटबुक की आपकी नोटबुक की जो कंप्लीट होगी in some sense. Submission complete. Add instruction का तुमका start. अच्छा बस हमने स्टार्ट ऐड इंस्ट्रक्शन के बारे में बताया ठीक है आप जरा ये लिख लीजिए मुझे ये बताइए फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लिखिए एग्जांपल 2 या 1 ऐसा कुछ MOVA comma 25h and then I say add a hash यहाँ पे होना चाहिए don't forget this hash whatever 24h मुझे ये बताइए is this a valid way of doing the addition or invalid way of doing the addition this seems to be an invalid way of doing addition but it is not let's remember this as a valid and I will tell you how इस इंस्ट्रक्शन को समझिए मैंने क्या कहा कमेंट सब ऐसे लगाएंगे इससे क्या हो रहा है इस इंस्ट्रक्शन से it actually loads one of the operands into accumulator A आपने एक्यूमुलेटर के अंदर एक डेटा डाल दिया या मैं यहां से अगर कहूं A इस टाइम है कितना 25h am I correct right or wrong should have visible clearly वह क्या श्यामूर्ति करण add A कि A में जो डेटा ऑलरेडी है A में जो ऑलरेडी डेटा है
उसको इसके साथ ऐड कर दो, सिंपल। तो सही हुआ कि गलत? So here this is add second operand, that is your 34H to A. That is what this does. So we have made previous program slightly simpler. काम वही होगा, आपको different flavors जो है versions ही याद रखने हैं so that we understand how to do an operation in the simplest way. ठीक है? So इसका मतलब move A 25H is a valid instruction. We can move data directly into accumulator also because it ultimately is a register. Number one. Number two. ठीक है. Now, another example is what I do is I suppose H and then I say काम वही है, मुझे फिर से वही करना ना. Is this a valid case or this is an invalid case of writing them? No, Cyclops, focus on the. I knew that the way जिस तरह से तुम सोचते हो तुम्हें valid लगेगा. आपका जो दिमाग सोचता है ज़्यादा वो सोचते हैं logical basis पे, logical equivalences पे. अगर ये सही है तो ये भी सही होगा. You find a clear match that वहाँ पे भी R1 था डेटा जा रहा है, यहाँ पे A में डेटा जा रहा है. लेकिन बेसिक्स याद रखना भी जरूरी है. एक ना वो यूनिवर्सल रूल जो होता है, यूनिवर्सल रूल मैंने ये कहा है कि हर कोई ऐड ऑपरेशन एक्यूमुलेटर में ही होगा और यहाँ पे ऐड R1 कह रहा है तो ये एक वैलिड इंस्ट्रक्शन नहीं है. समझे? तो जो भी आपको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लॉजिकल ऑपरेशन करना है, वो कहाँ पे होना चाहिए? इन रेफरेंस टू एक्यूमुलेटर. दिस इज द गोल्डन रूल. ठीक है? अगर हमारे पास कोई स्पेस है, ये कोई स्टोरेज है, हम उसी को चाहे वो ए वो आर हो, हम उसको एक्यूमुलेटर भी कह सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास स्पेसिफिक ए है. नहीं, हमारे पास स्पेसिफिक ए है, दैट इज द एक्यूमुलेटर. ठीक है? मतलब समझो कि ब्लड पंप करना है, ये हम नहीं कहेंगे दिमाग ब्लड पंप कर रहा है, उसमें ब्लड तो जा रहा है लेकिन पंप कौन कर रहा है? हार्ट ही पंप कर रहा है. सो द हार्ट ऑफ दिस सिस्टम वुड बी एन accumulator. So this one is not a valid way of writing your operation. So this is an invalid. ठीक है ना? समझ आ गया? नहीं आ गया समझ में? अब आए. अच्छा, ठीक. अब सेम चीज में अगर मैं ऐसे करूं, इसी एग्जाम्पल 4 आप लिखिए, लेकिन मैं एक और इंस्ट्रक्शन ऐड कर देता हूँ इसमें. MOV A कॉमा हैश 34H, फिर मैं लिखता हूँ MOV R1 कामा 25H एंड उसके बाद मैं कहता हूँ add A कॉमा R1. Will this be valid or invalid? हाँ? This will be valid again because मुझे मकसद है add के साथ A1 होना चाहिए. ठीक है? वहां से फिर ऑपरेंड हो दूसरा या कोई रजिस्टर हो या कोई एड्रेस हो जिधर ऑपरेंड है, वो आ सकता है, बट यहां से हमारा एक्यूमुलेटर ही आना चाहिए. ओके, ठीक है. जरा लिखिए नेक्स्ट पॉइंट. आप लिखिए जनरल कमेंट. आप लिखिए हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ assembly language program. Structure of assembly language program. अभी तक to be honest with you, मुझे एक ना वो gut feeling आ रही है कि maximum students इसमें fail हो जाएंगे because वो reverberation मुझे अभी students से आ नहीं रही है, to be honest. And I see 90% of students failing straight away in this subject क्योंकि इसका जो exam pattern होता है वो theoretical नहीं होता है.
You will have to write programs. You will be given this, do this. You have to do this. So I don't see any programming logic reverberating from the students as of now. So I strongly recommend you go back home, follow this book word to word, give it at least 2 hours. उसका रीजन ये भी है कि एक वो क्लास में रिदम होता है, especially when you are teaching a programming subject. You need to have that rhythm in the classes. And हमारी क्लास हुई है एक हफ्ते बाद, दूसरी 2 हफ्ते बाद. So मतलब मुझे भी वो ना वो रिदम कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, because जब तक स्टूडेंट्स रिवर्बरेट ना करें मुझे नहीं समझ आता कि स्टूडेंट को समझ आए. So फिलहाल में ये हो रहा है कि हाँ ड्यूटी मैं अपनी निभा रहा हूँ, वो ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं उसका मुझे भी पता नहीं चल रहा है. ठीक है. So I recommend it, but it is an easy subject. Believe me, it's very easy subject. For me personally, programming was difficult, but this subject made it easy for me. Because यहाँ पे mnemonic codes जो यूज होते हैं, you easily are able to identify. Add a comma r1 add ही कर रहा है ना? Sub a comma और r1 subtract ही करेगा. And a comma r1 add ही करेगा. ऐसा इसमें थोड़ा फायदा है. ठीक है. So आप देखिए स्ट्रक्चर ऑफ असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम. शायद उम्मीद है मुझे कि इस हेडिंग से या इस लेक्चर से प्रोग्रामिंग लॉजिक और आएगा इंशाल्लाह. इस लैंग्वेज का नाम क्या है? इस लैंग्वेज असेंबली लेवल लैंग्वेज या mnemonic codes. So that's what I'm saying, structure of assembly language. Structure of assembly language. अब assembly language भी होती है डिवाइस बेस्ड. किसी डिवाइस के लिए assembly language थोड़ी डिफरेंट होगी. हम assembly level language पढ़ रहे हैं किसके लिए? 8051 माइक्रो कंट्रोल के. याद रखना, भूलने जाना इस बात को. So इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है? अभी तक जो आपने देखा स्ट्रक्चर ऑफ योर असेंबली लैंग्वेज. mnemonic कोड, उसके बाद मैं स्पेस को डॉट और डॉट से रिलेट करूंगा. ठीक है. थोड़ी सी स्पेस, फिर आपके ऑपरेंड्स और फिर कमेंट्स. एडिशनली आप देखेंगे किसी प्रोग्राम में और किसी प्रोग्राम में नहीं देखेंगे, उसको कहते हैं लेबल्स. तो इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से बना रहा हूँ. लेबल्स, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग इज नॉट जस्ट अबाउट एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, बट इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. है ना. प्रोग्रामिंग असल में क्या है? आप एक डिवाइस को केपेबल बनाते हो कि वो कोई डिसीजन ले सके. For example, you are making a robot and it is finding an obstacle. Now here it has to decide, do I need to go right or left or just stop? But anyways, it is a decision. Or do I need to hit the obstacle? So it needs to take this decision, and once it has taken this decision, what to do next? So what we need, ये जरा थोड़ा गौर से सुनो. What we need to do in programming is मुझे नुकसान भी करो. So what we need to do in programming is that हम एक sequence of steps लिखते हैं कि प्रोग्राम हम कंपाइलर को बोलते हैं आप ये करो ये करो ये करो. अब जब कोई डिसीजन मेकिंग का मौका आ गया, we tell him that आप यहाँ से प्रोग्राम की इस लाइन पे जंप करो और ये वाला पार्ट कर दो. सपोज फॉर एग्जांपल हमने एक ही प्रोग्राम में लिखा है फॉरवर्ड मोशन के लिए प्रोग्राम, दूसरा है लेफ्ट मोशन के लिए, तीसरा है राइट मोशन के लिए. या हम तो इशू आप तो रोबोट आप इशू पकान अगर हम सोचते हैं कि इस पर डॉक्टर लगे तो उसमें लगा था डॉक्टर लगा दी फिर रहा. ठीक. सो दैट मींस देखिए सारा क्या है एक ही प्रोग्राम है. ठीक. सो दैट मींस आपके पास एक मेन प्रोग्राम होगा
इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखिए, क्या करना है, कौन कौन से टास्क, एंड इट में हैव सब प्रोग्राम्स, सब प्रोग्राम 1, सब प्रोग्राम 2। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अच्छा प्रोग्राम हम सीख रहे हैं, ये किसके हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं that we will go for making these basic electronic। आपका क्या हमारा सो बेसिक मकसद है, हम जा रहे हैं टुवर्ड्स विच सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम। मकसद तो वही है, और एक रोबोट भी एक किस्म का एम्बेडेड सिस्टम है। मिसाल दूंगा, मेरे पास एक छोटा सा रोबोट है जो ऑब्स्टिकल को रिलेक्ट करता है, मतलब जो वैक्यूम क्लीनर, हाँ, जो वैक्यूम क्लीनर ये चल रहा है, एंड उसको स्पॉट करना है, एंड इसके अकाउंट and to motion of motors around and to suction pump on the ये दोन कामन खर्च में अलग-अलग सब प्रोग्राम है। थोड़ा समझ, मतलब मेन टास्क है इसका कि ये चलेगा, चल रहा है। अब टास्क 2 है कि ये ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई करेगा, ऑब्स्टिकल आइडेंटिफाई हो गया। टास्क 3 है कि इसको सक्शन करेगा, समझ रहे हो, एंड देन मे बी इट विल मूव बैक, एंड टास्क 4 होगा कि इसको आप डस्टबिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसमें डाल दो, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये सब प्रोग्राम से होगा, जिनको हम कहते हैं सब रूटीन्स। ये वर्ड लिखो, सब रूटीन्स। सब प्रोग्राम्स इन अ मेन प्रोग्राम आर कॉल्ड एज सब रूटीन्स। सब प्रोग्राम्स ऑफ अ मेन प्रोग्राम आर कॉल्ड एज सब रूटीन्स। इस लैंग्वेज में हम उसको कहते हैं सब रूटीन, सब रूटीन। अच्छा, तो मैं फॉर एग्जांपल अब कोई इवेंट हो गया, मैंने प्रोग्राम की लाइन 1 लिखी है, लाइन 2 लिखी है, लाइन 4 लिखी है, एंड यहां से कहीं लाइन 100 पे मैंने कोई लेबल की है L1। आइज ऑन बोर्ड पेज, मेरे प्रोग्राम की सपोज 100 लाइन्स है और 200 लाइन्स है। अब मेरा जो है एम्बेडेड सिस्टम ये लाइन 1 पे है, इसने एक काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया। मैं इसको कहता हूं अगर, लेकिन ये कंटिन्यूअसली ये इवेंट चेक करता जाएगा कि अगर ऑब्स्टेकल है, और सपोज ये अभी लाइन 4 पे था एंड इसने ऑब्स्टेकल डिटेक्ट किया। कैसे क्या किया वो हम बाद में देखेंगे, वो अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, वी विल डू दैट। बट सपोज से लाइन नंबर 4 पे काम कर रहा था एंड इसको ऑब्स्टेकल दिखा, अब उसको क्या करना है, यू टेल मी, इसको क्या करना है, स्टॉप, बैलेंस को स्टॉप करना है ना। सो दैट मींस इट कैन नॉट कंटिन्यू नाउ टू लाइन नंबर 5, इट हैज टू जंप समवेयर, राइट। इट हैज टू जंप टू अ प्रोग्राम व्हिच विल टेल इट टू स्टॉप एट लाइन नंबर, से फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 100 पे मैंने वो लिखा है, तो दैट मींस मैं ये कहूंगा जब भी आपने ऑब्स्टेकल देखा, यू टेक अ जंप, इसको हम कहते हैं शॉर्ट जंप। दिस इज एन इंस्ट्रक्शन इन 8051 SJMP। तो आई टेल इट दैट यू टेक अ शॉर्ट जंप टू लेवल 1, इसलिए हम लेवल यूज करते हैं। मैं इसको कहता हूं कि आपको जो नेक्स्ट काम करना है ना, अगर आपने ऑब्स्टेकल देख, मतलब ऑब्स्टेकल यस, फॉर एग्जांपल ऑब्स्टेकल इज देयर, ऑब्स्टेकल इज देयर, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू जंप टू लेवल 1। इसको पता होगी लेवल 1 कहां पे, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर ही है ना। इसने लेवल 1 पे जंप किया, वहां पे जो प्रोग्राम की लाइनें लिखी हो वो उसको बताएगी कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। जैसे आपको रुकना है, उसके बाद अपनी नोजल को डाउन करना है, उसको सक इन करना है जो वहां पे कूड़ा होगा, देन यू हैव टू टेक राइट, एंड राइट कॉर्नर में आपका डस्टबिन है, वहां पे उसको थ्रो कर देना है, एंड आपको वापस आना है अपनी जगह पे, फिर लाइन नंबर 5 को एग्जीक्यूट करना है, 7 है ना, सीधी सी बात, इसको आगे आगे चलना है, ठीक है। तो ये किससे मुमकिन हो पाता है, ये किससे मुमकिन हो पाता है, एवरीवन प्लीज, ये किससे मुमकिन हो पाता है, ये किससे मुमकिन हो पाता है, व्हाट, ये किससे मुमकिन हो पाता है, थोड़ा जोर से, सब रूटीन से, नंबर 1, नंबर 2 और किससे,
सब रूटीन से और लेबल से राइट और हाँ एक्सीलेंट बट आंसर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इन तीनों चीजों से मुमकिन होता है। ठीक है, किस किस से आप बताओ? शॉर्ट जंप इंस्ट्रक्शन से, सब रूटीन से और लेबल से। दैट मींस अगर हमें कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें हम ये जंप, लेबल, ये सब चीजें यूज करेंगे। अभी एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो है कि ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा ऑब्स्टेकल है और यस एंड नो। उसके लिए मैंने एक हिंट आपको दी थी क्लास में, फ्लैग रजिस्टर। एक रजिस्टर अगर फ्लैग हाई है ऑब्स्टेकल आया, फ्लैग लो है ऑब्स्टेकल नहीं, तो ये चलता जाएगा। जो भी फ्लैग हाई हो जाएगा किसी एक रजिस्टर की एक बिट होगी वो फ्लैग, तो इसको पता चलेगा ऑब्स्टेकल आ गया। वो सेंसर से वही पिन कनेक्टेड होगी। आपको समझा है? मतलब सपोज कोई सेंसर लगा हुआ है, ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग सेंसर, उसका डेटा आप किसी पिन पे ले रहे हो, माइक्रोकंट्रोलर आपने बनाया ना, हाँ सपोज किसी पिन पे उसने डेटा ले लिया, वो पिन हाई हो गई, वो पिन हाई हो गई तो हम उस पिन से कहीं पे आपका कोई रजिस्टर हाई कर लेंगे और वो रजिस्टर इस प्रोग्राम में यूज करेंगे एज एन ऑब्स्टेकल डिटेक्टर रजिस्टर या एज एन ऑब्स्टेकल डिटेक्टर फ्लैग। आपको समझा? वो अभी अगर समझ नहीं आया मसला नहीं है, वो हम उसके लिए अलग प्रोग्राम देखेंगे। ठीक है, so anyways let's move ahead. Let's write a very simple program. Let's write a program using this label and all these things so that it is more clear. हल्की सी मुझे फीलिंग आ रही है रिवर क्वेश्चन की, लेकिन अभी भी बहुत कम है। It should increase at least by 80% more. 20% मुझे फीलिंग आ रही है, 80% अभी बाकी है, but 20% आ गई, चलो शुक्र है। इसका मतलब यार ऑन ट्रैक। तो इस प्रोग्राम से मुझे उम्मीद है 40% या 50% और ऐड होगा। देखो जी कैसे, ये हमें एक फॉर्मल प्रोग्राम लिखा है। यू कैन राइट फर्स्ट फॉर्मल प्रोग्राम फॉर 805। एक बाज़ाब्ता है ना पूरा प्रोग्राम एंड टू एंड। आप देखिए फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट कंप्लीट प्रोग्राम, फर्स्ट कंप्लीट प्रोग्राम फॉर 805। इसको हैश कुछ रखिए सो दैट आपको अगर रेफर करना होगा तो इसी प्रोग्राम को रेफर करेंगे। देखिए जी, जब भी आप प्रोग्राम को लिखेंगे आप हमेशा org से स्टार्ट करेंगे। org 008। ये आप क्या बता रहे हैं? आप ये बता रहे हैं कि इस प्रोग्राम का ओरिजिन हो रहा है एक एड्रेस लोकेशन से जिसका एड्रेस है 008। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे MOV R5 #25H। उसके बाद आप लिखेंगे MOV R7 #34H। सेम एग्जांपल बट इन डिफरेंट वे। मुझे बताइए इन दो इंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने? Anyone in one voice you definitely can answer this. इन दो इंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया? R5 में डाला 25, R7 में डाला 34। Anything else? नहीं, और कुछ नहीं। Now what I am doing now, can you tell me? अब मैंने क्या किया? A#0। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? मैंने एक्यूमुलेटर को क्लियर किया या इनिशियलाइज किया टू 00 सो दैट मैं डाउट में ना रहूं कोई पिछला रिजल्ट तो नहीं होगा इसमें। अब हमें सीधी ना फॉर्मल प्रोग्राम। फॉर्मल प्रोग्राम मतलब कभी कभार आपके एक्यूमुलेटर में जंप वैल्यू हो सकता है किसी पिछले प्रोग्राम का, तो एंश्योर दैट वो नहीं है। एज अ प्रोग्रामर वी हैव टू इनिशियलाइज इट टू 00। अब हम क्लियर है ना इसमें 0 है, ठीक है ना? नाउ लेट्स गो अहेड। आई राइट ऐड हाँ R5, R7। एक क्वेश्चन था इस पे, जब हमने मूव किया, आपने पिछली बार बोला था कि ये एक्चुअली कॉपी फंक्शन होती है। अगर फॉर एग्जांपल A में ऑलरेडी कोई चीज है और हमने उसमें 00 कॉपी किया तो वो चीज वहीं पे रहती है ना, या फिर 00 रीसेट है अलग से? रीसेट नहीं, 00 इज एक्चुअली वैल्यू डायरेक्टली मैं इसको डाल रहा हूँ। 00 में किसी चीज को कॉपी नहीं कर रहा हूँ। और भाई और ये डेस्टिनेशन है कि सोर्स है? सर डेस्टिनेशन सोर्स मत है सर, लेकिन ये डेस्टिनेशन पर कॉपी का कोई असर नहीं पड़ता? पढ़ता है ना? क्या हो गया तुम्हें? कहाँ है दिमाग?
जब आप कॉपी करोगे डेस्टिनेशन में तो असर पड़ना चाहिए ना, तभी तो कॉपी कर रहे हो। सपोज मैं कॉपी कर रहा हूँ बुलवाजी जैकेट नेम्स, ये डेस्टिनेशन है, ये भी क्या इवेंट जैकेट राम के इवेंट जैकेट बट हम लोग कुछ ना करें बिग चार्ट कौन सा आगे हमारा ऐसा ऐसा कुछ सर ये सुना ओके एक्सपोर्ट 00 आपको काफी मतलब इनिशियल जैकेट से शुरू हो गई मार सुशी इनविजिबल जैकेट अब मैं किस तरह की my point is that zero is a value. Wait. Okay. Now next instruction is, we'll discuss later on. Next instruction is add R5, R7. लिखिए. बाकी सब सोए क्या? अगर मैंने लिखा add R5, R7, आपकी आंखें नहीं हैं. कहाँ रखी है आपने आंखें? It cannot be add R5. But now trust you understand. ना आप सीख रहे हैं कुछ, तो आपको खुद को ट्रस्ट करना है कि आपने ये सीख लिया. When I say it's a golden rule कि हर कोई add, subtract instruction के साथ क्या होना चाहिए? Accumulator as the destination. It is said. We cannot say it over and over again. But just to test you, I deliberately did it, and it is wrong. You cannot write register over it. It means only one person is awake, rest all are sleeping. So please wake up. So you will then write add A, comma R5. Then you will write add A, comma. अच्छा, जब मैंने ये इंस्ट्रक्शन किया, eyes on board please. मैंने किया add A, comma R5. तो हुआ क्या? A is equal to A plus 25. ये सब लोग आप साथ साथ करते जाएंगे. It means that A का previous वैल्यू क्या था? और इस टाइम ऐड कर रहा हूँ उस पे 25. तो A का न्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? 25. Do you follow this? Yes or no? यस सर How many say no? 1. और कोई? Do you follow this? Yes or no? Sure? Okay, now tell me then what do you say? Now I write add A, comma R7. Come on the board please. Come on the board. Yes. Huh? Okay, now solve this for me. A का previous value लेना है. देखो A is equal to बोर्ड का. ठीक है? R7 का डेटा, right? Excellent, thank you. So is he correct? Absolutely correct. Because A में अब by default 25 था, तो A is equal to A plus this. Because add का मतलब ही वही है. So next ये हमने वही काम किया जो हम तक करते आए आ रहे थे. But that was in an informal way. This is in a more formal way. How to make your program so that हमारे पास modularity भी रहे. हम अगर कोई instructions change करना चाहें. Now, suppose I make a label over here. इसका लेबल का नाम क्या रखूं मैं? Here ही रखते हैं. Here रखते हैं इसका नाम. या चलिए लेबल 1 रखते हैं. बेहतर है नंबर्स अवॉइड करें, कुछ नाम ही रखें. लेबल भी अब गड़बड़ हो सकता है, वो भी कीवर्ड भी. सो नाउ आई विल राइट एन इंस्ट्रक्शन S J M P लेबल 1 and then I write end. ये कंप्लीट प्रोग्राम आ गया आपके पास ओरिजिन से लेके एंड तक. इस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है. देखिए जी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कितना सिंपल है. कोई वो तफरीक नहीं, कोई जबरदस्त डेटा स्ट्रक्चर्स नहीं है इसमें. बहुत सिंपल है. आपको ऑपरेशंस करा रहे हैं एंड सपोज जंप आपने किया टू लेवल 1. जब के लिए आपने कंडीशन क्या रखी? फिलहाल कुछ नहीं.
हाँ सीधे जाओ, SJM सीधे जाओ, सीधे जाओ। Actually it is short jump, but for you SJM is सीधे जाओ, ठीक है? Later on हम यूज करेंगे ऐसे JMPE, इसका मतलब है jump if the parity bit is even. parity bit कहीं bit होगी किसी रजिस्टर में, हम कहेंगे अगर parity even है तो jump करो, अगर parity odd है तो आगे चलते जाओ, ठीक है? This is called as, by the way, you write this, SJMP means short jump. SJMP के बारे में 2 पॉइंट, भाई हमें पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। SJMP के बारे में 2 पॉइंट, पहला SJMP शॉर्ट जंप, मतलब हम किसी नियरेस्ट एड्रेस लोकेशन पे जंप करते हैं, ज्यादा दूर भी जंप नहीं कर सकते। ना हाँ यही काम करता है, यही काम करता है, रीसेट हो जाएगा। So SJMP means short jump. Point number 1. Point number 2. This is an unconditional jump. That is what he was asking. This jump is called as unconditional jump. सीधे jump. SJMP is unconditional. हमने ना condition कोई नहीं, इसको हमने check किया. तो इसको हम कहते हैं unconditional jump. कोई बात नहीं, unconditional jump. So this means यहीं पे दूसरी हेडिंग हमारे लिए खुल जाती है, इसका मतलब है कि कुछ जंप होंगे जो कंडीशनल होंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आएगा जंप इफ कैरी, जंप इफ नो कैरी, जंप इफ पैरिटी इज इवन, जंप इफ पैरिटी इज ऑड, ऐसी ऐसी चीजें, ठीक है? जंप इफ द रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर इज 0, जंप इफ रिजल्ट ऑफ एक्यूमुलेटर इज नॉन 0, ओए ऐसी सारी कंडीशंस आएंगी, वो हम यूज करेंगे। तो फिलहाल ये आपका मकसद समझ आएगा डिसीजन मेकिंग का क्या है, ये इसमें होगा क्या प्रोग्राम में, आप बताइए, आप बताइए इस प्रोग्राम में क्या होगा? इसमें सबसे पहले R5 में डाटा देगा, फिर तेज में A को रीसेट करेगा, फिर R5 का A में बनेगा, उसको ऐड करेगा R7 के साथ और फिर सीधे जंप करेगा R11। होगा क्या हाँ एंड ये कभी नहीं होगा, that's the trap, ये एंड कभी नहीं होगा because this is an unconditional jump। देखने वाला है, ये कम में फिर जाएगा, ये उसके ऊपर फंसा जाएगा, तो get the point? So एंड प्रोग्राम कभी होगा ही नहीं जब तक कयामत नहीं है, तब तक ये जंप करता रहेगा, ठीक है? ओके टाइम क्या? अब देखिए, ये तो आपने यहाँ पे लेबल यूज किया, हमने यहाँ पे लेबल यूज किया L1, बट एक्चुअली हम लेबल यूज नहीं करते प्रोग्राम में, हम क्या इसका एड्रेस ले लेते हैं। आईज ऑन बोर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो हमने यहाँ पे लेबल लिखा L1, लेकिन प्रोग्राम में ऐसे नहीं, यार जो हमारा सिस्टम है हम वहाँ पे लेबल 1 लेबल 2 नहीं लिख सकते, वहाँ पर हमें एड्रेस पता होनी चाहिए। यहाँ पे एड्रेस क्या है जिसपे ये इंस्ट्रक्शन स्टोर है, आई रिपीट, वहाँ पे हमें क्या पता होनी चाहिए? एड्रेस। तो सपोज ये प्रोग्राम अगर 0 से शुरू हुआ 2 मिनट के लिए, और इस इंस्ट्रक्शन ने 1 बाइट ली, ठीक, इस इंस्ट्रक्शन ने 1 बाइट ली, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो स्टोर होगा वो 0 1 पे स्टोर होगा। डू यू फॉलो मी और नॉट? मैंने कहा सपोज ये 0 है कोई एड्रेस, ये इंस्ट्रक्शन 1 बाइट का है, 1 बाइट इसने खा ली, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 0 1 पे स्टोर होगा, क्योंकि एक एड्रेस की इंक्रीमेंट हो जाएगी, ठीक है, एक एड्रेस लोकेशन। अब ये हमारा मूव R5, 25H, ये खाएगा 2 बाइट, ये 0 1 पे है, ये कहाँ पे होगा? 1 पे ये है, 1 खाएगा और 2 खाएगा, ये 3 पे होगा, सही है ना? यू डोंट फॉलो दिस, आई विल रिपीट। ये 0 एड्रेस पे स्टोर है, जो 0 लोकेशन इसने खा ली, नेक्स्ट एड्रेस किस पे आएगा? 1 पे, क्योंकि ये 1 बाइट का है।
अब ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट का है, सो 1 + 2 इज हाउ मच? 3। सिंपल ना? इस एड्रेस को 2 ऐड करेंगे, वो 5 आ गया। तो ये किस पे आएगा? 5 पे। ठीक, ये आएगा 6 पे। दिस इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। एज्यूमिंग, फिलहाल हम इसको एजम्पशन ले लेते हैं, बाद में इसकी एक्यूरेसी हम चेक करेंगे कौन कितना है, दैट हैज टू बी सेपरेट क्लास। सो दिस मींस दैट मुझे अगर लेवल करना है, वो क्या करना है? 0 5। ठीक, सो दिस मींस दैट वी हैव टू ऑलवेज कैलकुलेट द एड्रेसेस कि कौन इंस्ट्रक्शन कितने बाइट लेता है। नाउ दिस इज योर असाइनमेंट स्ट्रेट अवे, असाइनमेंट नंबर। अच्छा, ऐसे तो असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, आपको कितनी याद दिलाई? हाँ? नहीं, चलिए छोड़िए, आप पीछे जो हुआ सो हुआ। हमारी नेक्स्ट क्लास कब है? कल, नहीं परसों, है ना? असाइनमेंट लिखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई the number of bytes consumed, how to identify the number of bytes consumed by an instruction how to identify the number of bytes consumed by an instruction in an 8051 program, in an 8051 based program. 8051 या assembly level language program for 8051. You can use both the wordings according to your own discretion on Google and search this. And ये assignment straight away check होगा next class में without any delay. One who fails because एक वजह मुझे ये भी नजर आ रही है, मेरी थोड़ी leniency for these classes. I feel sorry for that part also, that वो मेरी तरफ से गलती है. We have to be strict. Students आ जाते हैं स्ट्रीम लाइन, जब आप ज़्यादा रिलैक्सेशन देंगे स्टूडेंट को भी क्या मजबूरी है, क्या रिलैक्सेशन चल देते हैं ना। सो एनीवेज, लेट्स कवर अप नाउ। जो हुआ पिछले हुआ, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई विल फील रियली बैड इफ आई विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द रिक्वायर्ड नॉलेज दैट आई एम सपोज्ड टू बी, एंड द वर्स्ट थिंग वुड बी इफ मोर स्टूडेंट्स फेल इन द सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली प्रीवियस सब्जेक्ट जो था मेरा, उसमें करीब 10 स्टूडेंट्स और 13 स्टूडेंट्स ऐसा कुछ रह रहे हैं अपनी ही मोर्चों में, which is a problem. Unavoidable circumstances again, but then that's a different question. I don't want to defend that or say that about that. That is there on the papers. लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं। I don't like leaving students behind, but I don't pass them as well. Just me, वो भी मैं नहीं करता। So solution क्या है? Solution है कि इस वक्त में हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, कुछ प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ये टीचर स्टूडेंट गैप ही है कि वो फेल हो गए। नाउ मे बी आई एम प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, यू वोंट ब्लेम मी, बट मे बी टुमारो डाउन द लाइन इन समथिंग यू विल ब्लेम द टीचर, नहीं टीचर की गलती थी, ये था वो था वो था। वेन मे बी यू कैन बी करेक्ट, यू कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम यू हैव टू बी रॉन्ग बिकॉज देयर वर n number of students who passed and there was only few who were failed. So that is definitely the problem of a student-teacher communication issue. टीचर अब इससे ज़्यादा क्या कम्युनिकेट, क्लास में आ रहा है, बोल रहा है, आपको प्रॉब्लम है तो बोलो बोलो बोलो, उसके बाद घर थोड़ी ना आएगा, इसलिए अलग पैसे लगेंगे, इसके बाद वी कैन डिस्कस दैट। वी विल स्टॉप हियर, इट वाज जस्ट जोक, सो लेट्स